Good morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to have a recorded class. Today we don't have live class. So whatever is taught to you today, whatever I am going to teach you in the recorded class today, if you have any doubt regarding that, you can ask me whenever we have a live session. Okay, I'm sharing the screen with you, and directly, without summarizing what was taught in the last class, directly I am entering into the lesson from where we have to start. Okay, so I'm sharing the screen with you of the lesson. So we stopped here. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. Now we will enter into the next paragraph. Okay. You cannot imagine, dearest Koni, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, hands outstretched. ठीक है, वो अपनी वाइफ से कहता है कि कोनी, तुम मेरी फीलिंग्स समझ नहीं पाओगी, मैं अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि फ्रिट्स ऑफिसर जब मेरे तरफ में हाथ बढ़ाता हुआ आ रहा था, उस वक्त में मेरी फीलिंग्स क्या थी, उसकी आंखों में देखकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही थी, ये मैं बयां नहीं कर सकता. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. Hans Wolf, he said. Hans Wolf क्या हो सकता है? जर्मन ऑफिसर का नाम है ये, हैंस वुल्फ. ओके, ही इज ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. बहुत ही प्यार से, बहुत ही नरमी से वो उसका हाथ पकड़कर, किसका हाथ पकड़कर? जिम मैकपर्सन का हाथ पकड़कर वो उसे विश करते हैं. आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ. ठीक है, जर्मन ऑफिसर हैंस वुल्फ कहाँ के हैं? ही इज फ्रॉम डसलडॉर्फ. I play the cello in orchestra. What is his profession? He plays a cello in orchestra. ये क्या है? वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ऑर्केस्ट्रा में प्ले होता है, और हैंस वुल्फ यही काम करते थे. एंड ही विशेस हिम मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस. नाउ लेट्स एंटर इनटू द नेक्स्ट पेज. Captain Jim MacPherson, I replied, and happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, फिर जिम अपना इंट्रोडक्शन देता है, that I am Captain Jim MacPherson. He wishes him back Merry Christmas, and he tells him that he is a school teacher by profession. He works as a school teacher in Dorset, which is in the west of England. Okay, who is a teacher by profession? Jim MacPherson is a teacher by profession. Ah, Dorset. He smiled. I know this place. कौन कहता है ये? Who must have said this? Hans Wolf is saying that he knows this place. Which place? Dorset. I know it very well. बहुत अच्छी तरह से वो Dorset place से वाकिफ है. We shared my rum ration and his excellent sausage. ये rum ration, रम पी रहे हैं वो लोग. ठीक है, रम किसके पास है? Our rum ration means Jim is having it, and excellent sausage is with Germans. And we talked. Connie, how we talked. ठीक है, और फिर वो बता रहा है कि हमने बातें की, और वो बता रहा है कि हमने किस तरह से बातें की. लेटर के थ्रू बता रहा है कोनी को कि हमने किस तरह की बातें की थी. He spoke almost perfect English. Even though he belonged to German community, even though he was a German, but still he could speak English very perfectly. But it turned out that he had never set foot in Dorset. कहने का मतलब है वो डॉर्सेट को अच्छी तरह से जानता है, पर उसने डॉर्सेट में कभी कदम रखा ही नहीं है. ठीक है, वो उस तरफ में, इंग्लैंड की तरफ में कभी आया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है. नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड भी कभी नहीं आए हैं. He had learned all he knew of England from school. ठीक है, उसने जो भी पढ़ाई की है इंग्लैंड के बारे में, उसने सब कुछ स्कूल से ही पढ़ा है. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. और इंग्लिश में किताबें पढ़ के वो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं. His favorite writer was Thomas Hardy. उनके फेवरेट राइटर कौन है? हैंस वुल्फ के फेवरेट राइटर कौन है? थॉमस हार्डी. और उनकी फेवरेट किताब कौन सी है? हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. उस किताब का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बैथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. ठीक है, किस बारे में बात कर रहे हैं वो?
ये इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। नो मैन्स लैंड में बैठकर वो लोग इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये बाथशेबा, गैब्रियल, ओक, सर्जन, ट्रॉय और डॉर्सेट, ये सब क्या है? These are the characters of the book. Dorset is the place. Dorset is the place that is being mentioned in the writer's book. Sorry, this one, his book. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इस बुक के अंदर के कैरेक्टर से बाथशेबा, गैब्रियल ऑक और सर्जन ट्रॉय, और डॉर्सेट इज द प्लेस जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। He had a wife and one son. Who had a wife and one son? Again, Hans Wolf had a wife and one son born just 6 months ago. उसका बच्चा सिर्फ 6 महीने का है, 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. ठीक है, दूर दूर तक नजर के अंदर उसे क्या दिखाई दे रहा था? सिर्फ खाकी वर्दी में और ग्रे कलर की वर्दी में उनके सोल्जर्स दिखाई दे रहे थे, जो एक दूसरे के साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. इनके पास में क्या था? अब क्रिसमस केक जो पोनी ने बनाया हुआ है, जिम की वाइफ ने बनाया हुआ है, वो क्रिसमस केक ये लोग एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे हैं। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसको जो marzipan है, marzipan क्या है? The sweet covering on the cake made from sugar, eggs and almonds. ठीक है, केक के ऊपर की जो कवरिंग है वो उसको इतनी टेस्टी लगती है कि वो कहता है आज से पहले इतना ज्यादा टेस्टी मार्जिपन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई अग्री, इवन जिम अग्रीज विद द सेम, क्योंकि उसको भी अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ ये केक बहुत ज्यादा पसंद है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी। देखो, वो मेरा दुश्मन है। एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के हमेशा अगेंस्ट में ही बोलता है और उन दोनों के विचार कभी मिल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकी हर एक बात एक दूसरे से मेल खा रही है। There never was a Christmas party like it, पोनी। वो पोनी को बता रहा है कि आज से पहले इतनी अच्छी क्रिसमस पार्टी मेरी कभी नहीं रही है। Then someone I don't know who, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद में कोई तो भी जिसे वो जानता भी नहीं है, brought out a football, किसी ने तो भी फुटबॉल लाया। Great coats were dumped in piles to make goal post. अब फुटबॉल में गोल पोस्ट करना होता है, गोल बनाना होता है, तो ग्रेट कोट्स वेर डम्प्ड इन पाइल्स। इन लोगों ने क्या किया? जो कोट्स थे उन लोगों का एक हिप बनाकर रख दिया, पाइल करके रख दिया उसे। ठीक है, पाइल करके रख देना मतलब उनका एक गट्ठर बना के रख दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लाद दिया उन्होंने, टू मेक गोल पोस्ट। क्या बनाने के लिए? गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और जो नेक्स्ट चीज वो होने वाली थी वो कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, इन दोनों के अंदर क्या होने वाली है? अब फुटबॉल की मैच होने वाली है। कहां पे? इन नो मैन्स लैंड। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों के दोनों कैप्टन्स उन लोगों को, सिर्फ आर्मीज को, सोल्जर्स को चीयर कर रहे हैं खेलते हुए, और ठंड से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं? स्टैम्प कर रहे हैं, अपने फीट को पटक रहे हैं, अपने फीट को, ताकि जितनी हो सके उतनी ज्यादा ठंड से वो बच सके। Okay, there was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक वक्त ऐसा भी आया जब बातें करते करते उनको ये चीज महसूस होती है, अब ठंडी है, ठंड होने की वजह से जो भी वो बोल रहे हैं और जो हवा उनके मुंह से निकल रही है वो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, धुआं उनके मुंह से जो निकलेगा वो विजिबल होगा। तो बात करते करते उनके मुंह से जो धुआं निकल रहा है, ठंड का धुआं, जो सांसें निकल रही हैं, वो एक दूसरे के साथ में मिल रही है, मिंगल हो रही है। तो ये देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। He saw it too and smiled. दोनों एक दूसरे को वो देख, कहने के लिए वो दोनों अलग अलग आर्मीज को बिलोंग करते हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और आए हुए यहाँ पर वो फाइट करने के लिए, दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट ईच अदर। बट नाउ द सिचुएशन, ये सिचुएशन देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो लोग अलग अलग जगह से हैं, मानो कि ये दोस्त ही हैं। ठीक है, बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं है दैट दे आर एनिमी ऑफ ईच अदर। He said, Jim McPherson, he said after a while. ठीक है, जिम का नाम लेते हुए कुछ एक दो सेकंड्स के बाद में वो कहते हैं, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस। वो क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो झगड़ा है, ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, काश ये भी इसी तरह से सॉल्व हो जाए। अ फुटबॉल मैच
इसी फुटबॉल मैच की तरह, नो वन डाइज, जिसके अंदर कोई मरेगा नहीं, जिसमें किसी की मृत्यु नहीं होगी। जब किसी की मृत्यु नहीं होगी तो किसी के बच्चे अनाथ नहीं होंगे और किसी की बीवियां विधवा नहीं बनेंगी। काश ये जो वॉर है, ये वॉर भी इसी तरह से एंड हो जाए जैसे कि एक फुटबॉल मैच एंड होता है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो वो मजाकिया मूड के अंदर कहते हैं आई वुड प्रिफर क्रिकेट। ओके, जिम सेज आई वुड प्रिफर क्रिकेट। तुम फुटबॉल खेलना प्रिफर करोगे, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा क्रिकेट मैच। व्हाई ही इज प्रिफरिंग क्रिकेट मैच? बिकॉज इंग्लैंड प्लेज good cricket, as we all know they are very good in playing cricket. I told him then we Tommies could be sure of winning. इससे क्या होगा कि हम ब्रिटिशर्स हमेशा ही जीतेंगे। प्रोबेबली, इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा यही है कि वो लोग जीतेंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। दोनों हंसने लगे और फिर बाद में वो लोग गेम खेलने लगे। सैड टू से, क्या है सैड टू से कॉनी? फ्रिट्स वन 2 गोल्स टू 1। ठीक है, फ्रिट्स जीत जाते हैं फुटबॉल मैच में, जर्मन्स जीत जाते हैं। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, अपनी उदारता से, हाँ उदार होकर हैंस वुल्फ क्या कहता है? अवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। ये गेम फेयर नहीं रहा, हमारी गोल पोस्ट बड़ी थी, इस वजह से हम आसानी से जीत पाए। आप लोगों ने भी अच्छा खेल खेला है। ये उसकी उदारता थी। ठीक है, किसकी उदारता? हैंस वुल्फ की उदारता। द टाइम केम and all too soon when the game was finished. वक्त आ गया जब सब कुछ खत्म हो गया, गेम भी खत्म हो गया, शैप्स भी खत्म हो गई, रम और सॉसेज भी खत्म हो गए। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. उसको विश करता है कि फाइटिंग जल्दी से खत्म हो जाए और हम सब लोग सकुशल अपने अपने घर लौट जाए। ठीक है, अपने अपने घर पे जाकर क्रिसमस मना पाए। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, हैंस वुल्फ कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स मौजूद हैं, हर कोई यही चीज चाहता है कि सब लोग सकुशल अपने घर लौट जाए और ये युद्ध जल्दी से खत्म हो जाए। टेक केयर जिम मैकपर्सन, वो उन्हें विश करते हैं टेक केयर। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉट यू, ना तो मैं कभी इस मोमेंट को, इस पल को भूल पाऊंगा, ना ही आप भूल पाएंगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. Okay, he salutes. Who salutes? Hans Wolf salutes Jim and walks away slowly from there, but Jim thinks he is walking unwillingly. जाना नहीं चाहता है, पर जाना उन लोगों की मजबूरी है। I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. बस सिर्फ वो एक बार पलट कर देखता है जब वो उसे बाय बाय कहता है, और फिर कुछ देर के बाद में वो सभी लोग एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, और हैंस वुल्फ भी उनको जर्मन आर्मी को बिलोंग करता हुआ एक ऑफिसर के अलावा कुछ भी और दिखाई नहीं देता, जो सबके सब अपने ट्रेंचेस की ओर बढ़ रहे हैं। दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स, ठीक है, उस रात सबके सब अपने डगआउट्स में से, अगेन डगआउट्स द शेल्टर दैट इज मेड, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, सब लोग कैरोल सिंग कर रहे हैं। कैरोल क्या होता है? जो क्रिसमस की नाइट को जो हम गाने गाते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैरोल। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो बहुत ही मधुरता से वो गाने गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच, ये सॉन्ग का, कैरल का नाम है। साइलेंट नाइट, स्टिल नैच साइलेंट नाइट। कौन गा रहे हैं? ये जर्मन्स। अवर बॉयज गिव देम अ रोजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच, रोजिंग कोरस, ठीक है, उनके साथ साथ ये भी गाने लगते हैं, जोरों जोरों से गाने लगते हैं इनके कोरस सॉन्ग। क्या नाम है? वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच, इनके कैरल का नाम क्या है? वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, थोड़ी देर के लिए वो लोग कैरल सिंगिंग करते हैं और फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। वी had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I will live. तो जिम पोनी से कहता है कि हमने ऐसा वक्त बिताया है शांति के अंदर, भाईचारा और शांति का ऐसा वक्त बिताया, ऐसे मोमेंट्स, इतने अच्छे पल बिताए हैं जो हमेशा मेरे मन के अंदर यादें बन के रहेंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। I hope this much part of the lesson is clear to you. I will end up to here. यहाँ पर तक हम पढ़ेंगे Your loving Jim, मतलब लेटर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है।
Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. ठीक है, अगले क्रिसमस तक ये क्या हो जाने वाला है, ये वॉर सिर्फ एक डिस्टेंट, दूर दूर खेला हुआ वॉर एक टेरिबल मेमोरी बन के रह जाने वाला है. ऑफ कोर्स एज वी नो दैट दो दे वेर टुगेदर फॉर सम टाइम, थोड़े वक्त के लिए ये लोग साथ में थे, भाईचारा मनाया, एक दूसरे के साथ में शांति उत्सव मनाए इन लोगों ने, बट आखिर में उन्हें ये चीज तो पता है कि उनको वॉर को एंड करना ही है, वॉर को एंड करना ही है, कई लोगों ने मरना है, तो it always has to be a terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. एक चीज तो क्लियरली उसे पता चली, जिनको पता चली कि एक दूसरे से मिलने के बाद में कि कितना हम लोग एक, हम सब के सब शांति के बारे में सोच रहे, कितना हम सब लोग चाहते हैं कि शांति बन जाए, दोनों की दोनों कंट्रीज के बीच में शांति बन जाए. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. अगेन फिर वो कोनी को ये कहते हैं कि हम दोनों जल्द ही मिलेंगे. मैं श्योरली कहता हूँ कि मैं क्रिसमस में जरूर आऊंगा, या मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा. उसे पूरी श्योरिटी है कि वो लोग जंग जीत जाएंगे और वो लोग वापस लौट पाएंगे. ठीक है, योर लविंग जिम. यहाँ पर वो लेटर खत्म हो जाता है. आई होप दिस मच पार्ट ऑफ द लेसन इज क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स, pay very much attention while I am teaching this lesson to you, because ये लैंग्वेज बहुत ट्विस्टेड है. ठीक है, ये सारा का सारा किसके अंदर दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, कौन सा सेंटेंस कह रहा है. और कुछ लैंग्वेजेस जर्मन के अंदर है, कुछ शब्द जर्मन के अंदर है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश के अंदर है, दैट यू वोंट अंडरस्टैंड. यू विल नीड अ मीडिएटर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. So when I am teaching you this lesson, you have to be very much careful and very much attentive. Okay, so I will end our today's class here. Whatever doubts you have, if you haven't understood any part of it, underline and keep, because I have already sent the PDF of the lesson yesterday through Mohit sir in your WhatsApp group. So what you can do is you can underline and keep the part that is not understood to you, and when we will have a live session, at that time you can ask me whatever doubts you have. Okay, till then, take care all of you and be safe. Have a nice day. Thank you.